حوالہ پیش کیا ہے کہ رشید احمد گنگوہی تقویت الایمان کو گھر میں رکھنا یعنی اسلام بتا رہے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل دو دلیل. وہ کھیل اسکین والا کھیل کہیں اور کھیلنا جاگے. مجھے دلیل چاہیے. اسکین کے بغیر کیا بات کریں گے ہم؟ کیا بات کرو گے تم اسکین کے بغیر؟ دلال کی بغیر کیا بات کرو گے تم؟ ڈر رہا آپ کے دلائل سے یہ ڈر رہا. سوال ہے کہ جو رشید احمد گنگوہی جس چیز کو عین اسلام کہتے ہیں دیوبندیت میں اس کی دلیل نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دلیل دوں گا میں جواب دوں گا. ہاں میں جواب دوں گا اس کا. دیکھو عارف الحقانی جب تو پھنسا ہے تو شرائط اور اصول کے ذریعے ٹھیک ہے. تمہارا صادق بھائی سنیے. چلو ہاں چلو میری شرائط میری طرف سے سن لو. میری طرف سے شرط یہ ہے کہ شرائط میں اصول میں جو ہے اکابرین کے خلاف نہیں جانا چاہیے. کوئی بھی جو بھی آپ شرائط میں سے جو بھی شرط آپ کی ہوگی وہ آپ کے اکابر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس کو اور آپ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسا اصول. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ بات کریں گے سب سے پہلے تحقیقی جواب آپ کو دینا پڑے گا پھر الزامی جواب اور 2 منٹ کا وقت دیا جائے گا. بیچ میں کوئی نہیں بولے گا. اور اس کے علاوہ آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کیا شرط رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں. میری طرف سے یہی 3-4 شرطیں ہیں. ہیلو ہاں ہاں. اور درمیان میں کوئی بولے گا نہیں. 2 منٹ تمہارے 2 منٹ میرے لیے. ٹھیک ہے. درمیان میں کوئی نہیں بولے گا. ہاں تم بھی نہیں. جو بھی تم کا بولنا اگر ہے عبارت پڑھنے کا ہے پڑھانے کا ہے اوپر سے نیچے تک عبارت پڑھنا ہے اور اسکین بھیجنا ہے پرسنل پہ. جہاں سے پڑھنے کو کہا جائے وہاں سے پڑھو گے. ٹھیک ہے. اور مصنف کا نام صفحہ نمبر اور کتاب کا نام اتنا پوچھ سکتے ہیں. باقی کوئی بات نہیں. اگر تم درمیان میں ہمارے درمیان تم بولے تمہاری شکست ہو جائے گی. جو بھی بولنا تمہاری باری میں بولو گے میں جو بولوں گا میری باری میں. درمیان میں کچھ نہیں. جو میں بول چند باتیں. ٹھیک ہے. تو میں نے جو شرط رکھی وہ تم مان گئے؟ جی سر تمہاری آواز ذرا کٹی ہوئی ہے. ارے جو شرط میں نے رکھی وہ تم نے مانا کہ نہیں؟ کون سی؟ ہاں بالکل. وصول تمہارا اعتراض تمہارے وصول کے اس کا ہوگا. ٹھیک ہے. کیا جی سنو. نہیں میں نے جو کہا ہے پہلے سن لو کان کھول. تمہاری کوئی ایک شرط بھی تمہارے اصول کے تمہارے مسلک کے اکابر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. شرط سوچ سمجھ کے رکھنا. اگر خلاف ہوا تو تمہاری شکست. تمہارا کوئی ایک اصول کوئی ضابطہ بھی تمہارے اصول کے تمہارے مسلک کے اکابر کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. جو بھی اصول اور ضابطہ پیش کرو گے تو اپنے اصول کو اور شرائط کو اپنے اکابر سے ثابت کر کے دکھانا پڑے گا. شرط بھی اگر تم رکھو گے اور اس کو بھی تم کو جو ہے اپنے مسلک کے اور اکابر کے جو ہے طریقے پر اور ان کی جو ہے عبارتوں سے دکھانا پڑے گا ثابت کر کے. کون سی سر؟ کوئی بھی آپ شرط رکھیں وہ آپ کے مسلک کے اکابر کے مطابق ہونا چاہیے. آپ ان کو مطابق ثابت کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اور پہلے تحقیقی جواب آپ دو گے پھر جو ہے پہلے تحقیقی جواب. ٹھیک ہے. پھر الزامی جواب. ارے میری بات سنو. ہاں میں جو شرط رکھوں گا ہاں وہ ہمارے مسلک کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کے مسلک کے مطابق ہونا چاہیے. اچھا مطلب میں جو شرط رکھوں گا ہاں وہ ہماری کتاب سے دلیل ہونی چاہیے. وہ دلیل عقلی سے معتبر ہے. اچھا یہ دیکھو صادق بھائی کہاں بھاگ رہا ہے. تو مطلب آپ جو سنیں نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میری بات سنو. آپ جو ہمیں حوالے سنیے. ارے میری بات سنو. آپ جو ہمیں حوالے دیتے ہیں تو مطلب وہ ہماری عبارتیں آپ کے لیے معتبر ہوتی ہے پھر ہماری کتابیں نہیں. دیکھو اصول یہ ہے کہ مخالفین کو ان کی گھر کی کتاب دینی چاہیے. ہاں تو پھر کیوں کہہ رہا ہے تو ہاں تو آپ مخالف ہیں. میں آپ کے گھر کی کتاب دلیل دوں گا نہ کہ میں میرے گھر کی دلیل دوں گا. ہاں تو اچھا یہ بتائیں مطلب آپ کے گھر کی جو کتاب ہے وہ آپ کے لیے معتبر نہیں ہے. ہمارے مسلک کی کتاب ہمارے گھر کی کتاب ہمارے نزدیک معتبر ہے. ہاں تو آپ کے نزدیک معتبر ہے یعنی خاموش رہو. صادق بھائی یہ ایسے ٹائم پاس کرے گا یہ مطلب یہ لوگ بات نہیں کرے گا ٹائم پاس کرنے. سنو وہ چھوڑو. ہمارے اکابر کی کتاب ہمارے لیے معتبر ہے. ہمارے گھر کی ہم ہمارے خلاف پیش کریں گے. ہاں نہیں آپ کے گھر کی کتاب آپ اپنے ارے میری بات سنو. آپ کے گھر کی کتاب آپ کے لیے معتبر ہے نا. آپ سنیے آپ دیوبندی کے نقش پر چلتے ہیں یا کسی اور کے نقش قدم پر چلتے ہیں؟ ہم جو ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ.
घर में रखना नहीं इस्लाम मतलब है। देवबंदी जमात मतलब हमारे नजदीक इज्जत है। अरे तो देवबंदी, आप देवबंदी के नक्शे कदम पर नहीं है। मैं क्या बोला, मैंने क्या बोला, क्या बोला आपने? मैंने क्या बोला, सुनते देखो नहीं, देखो तुम सुनते असगरी हो क्या? बेगम, टाइम जाया देखो, करने सामने मत आया देखो, करो। जबान सुनो देखो। सुनो सुनो, दो मिनट सुनो, हो गई तो अरे सुनो, दो हालत मिनट खराब बात हो गई करेंगे। नसबंदी की। सुनो, आपकी कोई भी हालत खराब शर्त, हो गई सुनिए, तुम्हारी। आपकी कोई भी शर्त, सुनिए, जुबानी ना करें। अरे सुनो मेरी बात। समझ गए? अरे यार भाग रहे हो यार तुम लोग। काट दो बीच में बोल दिया चलो। बता। अब भाग जाएगा ये सादिक भाई, ये भाग जाएगा सादिक भाई, सादिक भाई ये भाग जाएगा, भाग। क्यों मुझे चुप कराया, क्यों? हाँ मैंने बीच में बोला, सुनिए सुनिए सादिक भाई, सादिक भाई मुझे चुप कराया था, ये बीच में बोला क्यों? अभी बीच में अभी तू बीच में क्यों बोल रहा था? अरे सादिक भाई एक बात सुनिए, सुनिए सादिक भाई रुक जाइए, सादिक भाई, सादिक भाई, मैंने फोन काट। अरे सादिक भाई मेरी आखिरी बात सुनिए आप। एक बात तेरा मुनव्वर सादिक भाई, सादिक भाई, तो बोला ही नहीं बोल था। रहा है सादिक। अरे सादिक भाई, सादिक भाई, तू बोल रहा है, एक सादिक बात भाई, तेरा मुनव्वर बोल सकता है। अरे अरे बाबा तेरी तू क्यों बोला? अबे हराम बोल रहा है। सादिक भाई, सामईन मोहतरम, ये हवाला भेजा है, मैं लगा दे रहा हूँ, आप फैसला करें। इसने क्या कहा कि तुम्हारा दावा, तुम्हारे एतराज़ तुम्हारे अकाबिर के मुताबिक होना चाहिए, खिलाफ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि ये किसका उसूल है, इसने कहा कि तुम्हारी किताब में ऐसा लिखा है। अब आप इनकी जो पेश करदा इबारत है और हमारे आलिम दीन की जो इबारत है, ज़रा आप समाअत करें कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा देवबंदी वहाबी मौलवी अपने बड़े मौलवियों का मवाद कापी करके किताब लिखे तो उसका जवाब न दिया जाए कि इस तरह मौलवियों का जवाब देना अपना वक्त ज़ाय करना है। उनके लिए हमारे बुजुर्गों के जवाबात ही काफ़ी हैं। सामईन मोहतरम, देखिए किधर की बात किधर लेकर के आया। सामईन और नाज़रीन, तो आपने देखा इनका मक्र और फरेब, ये यही करता है, बस इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं, ये बात ही नहीं कर सकता, इस काबिल है ही नहीं। और मुझे तो हैरत होती है आरिफुल हगानी पर, जो इस कोठे वाली असगरी बेगम को लेकर के आया, अपने आप को आलिम कहता है, इन्हें तो डूब मरना चाहिए। तो सामईन मोहतरम, इसने कहा, नया उसूल पैदा किया कि तुम्हारा जो दावा है वो तुम्हारे अकाबिर के मुताबिक होना चाहिए, मसलक के मुताबिक होना चाहिए, तुम नया दावा नहीं कर सकते। मैंने उसूल पूछा तो ये जो इबारत पेश किया हमारे आलिम की तरफ मंसूब किया, क्या वो बात उस इबारत में मौजूद है? आपने देख भी लिया और पढ़ भी लिया होगा। तो बिल्कुल इनका मक्र फरेब दजल आपके सामने है, आप खुद ही फैसला करें कि ये मुंह लगाने के काबिल है, यकीनन ये थूके जाने के काबिल हैं। टाइम देखो सादिक भाई। सबसे पहली शर्त तो ये है, तुम्हारा एतराज और तुम्हारा दावा तुम्हारे मसलक के मौलवियों के उसूल के खिलाफ अगर हुआ, तुम्हारे मसलक की शिकस्त होगी। अच्छा ये उसूल किसका है? ये उसूल किसका है? खामोश रहो। नहीं, मैं तनकीद नहीं कर सकता, तुम्हारे शरायत पर तनकीद कर सकता हूँ ना। तो जो तुमने अभी शरायत पेश किया है, ये शरायत पहले तू मेरा जवाब दे कि ये उसूल किसका है। जवाब दूं मैं? हाँ दो। तुम्हारे घर का है। चल दलील दे। हाँ, हवाला दलील ये है, हवाला भेज। हाँ दे रहा हूँ, हवाला भेज दे उसको, नसबंदी को भेज रहा हूँ। सुन, बाकी है क्या? नहीं है मैं हवाला दे रहा हूँ, पर्सनल भेज रहा हूँ। अगर ब्लॉक नहीं किया है, देखता हूँ उसका नेट बंद होगा। अगर आप भेज दें। जी आप मेरे पर्सनल पर भेजे, मैं इंशाल्लाह भेज रहा हूँ। मैंने उसको भेजा है लेकिन बंद किया है शायद, और चारों तरफ से बचने की नहीं, हाथ भागा होता लगता है। आपको पर्सनल भेजा हूँ, क्या ठीक है? आपका नेट चालू है? जी मेरा चालू है, लेकिन पहुंच क्यों नहीं रहा है? मनोवर नसरुद्दीन मैंने भेज दिया है। हाँ इबारत पढ़ूं? हाँ पढ़, इबारत पढ़। हाँ, तुम्हारा क्या दावा था? दावा तुम्हारा है कि तुम जो भी दावा करोगे, जो भी करोगे वो तुम्हारे किताब से साबित हो। हाँ खामोश रहो, अभी दावा पेश करने हालत खराब हो गई है। अरे चल तू मुखालिफिन अबू अहमद मौलाना मोहम्मद अनस रज़ा कादरी, तुमने तक़ीयुल ईमान की इबारत पर एतराज़ किया है, और तक़ीयुल ईमान की इबारत पर हमारे कई उलमा और मुनाज़िर हज़रात जो हैं इसका जवाब भी दिया है, बाकायदा मुनाज़िरा भी हुआ है। अरे मैं जो तुमने दावा किया उस पर दलील है। जो हवाला भेजा है ऊपर सादिक भाई, ये जो हवाला भेजा है वो नहीं पढ़ रहा है। सामईन मोहतरम, इसने जो हवाला भेजा है डंडी मारने वाला,
ये हवाला नहीं पढ़ रहा है। स्कैन देख लिया, स्कैन देख लिया। हाँ यहाँ चल पढ़, हवाला पढ़। हाँ तो हवाला पढ़। हाँ हवाला ये है, इबारत ये है, हाँ सफा नंबर 36 में है हाँ कि हाँ अगर कोई छोटा मोटा देवबंदी वहाबी मौलवी हाँ अपने बड़े मौलवियों का मवाद काफी करके किताब लिखे हाँ तो उसका जवाब न दिया जाए कि इस तरह के मौलवियों का जवाब देना अपना वक्त ज़ाय करना है। उनके लिए हमारे बुजुर्गों के जवाबात ही काफी हैं, ये वसूल है। अरे तुमने क्या दावा किया? सुन, नहीं चुप, तुमने झूठा दावा पेश किया, ये दलील तुम्हारे लिए नहीं है। सामीन मोहतरम, इसने क्या कहा कि तुम जो दावा करोगे, जो तुम्हारे शराइत होंगे, जो भी होंगे, वो तुम्हारे किताब में तहरीर होना चाहिए। वो बात यहाँ पे कहाँ है? भाग मत, चुप। नहीं तो सामीन मोहतरम की आप जवाब दे, या भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं। नहीं चल जवाब दे, जवाब दे। मुझे बोलने नहीं दे रहा है। सामीन मोहतरम मैं ये हवाला लगाऊंगा, ये असगर। हाँ अच्छा ये बताओ, नहीं शिकस्त नहीं, चल अच्छा इसमें कहाँ लिखा है कि जो तुम दावे करोगे वो तुम्हारे जो है अकाबिर की किताबों में होना चाहिए? कहाँ लिखा है? पढ़। हाँ कहाँ लिखा है? जवाब दे रहा हूँ। जवाब नहीं, पढ़ के सुना। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। और असगरी ये काफिर जहन्नमी, इस पर तो बेशुमार अल्लाह की लानत। झूठा, चल हाँ कहाँ लिखा है? चल अगर कसम उठा के लिखा है इसमें, नहीं हाँ बता कहाँ की कसम इसमें नहीं लिखा है? हम खामोश रहते, अल्लाह की कसम इसमें नहीं लिखा है कि जो दावा करेगा वो अकाबिर की किताब में होना चाहिए। ये अल्लाह की कसम इसमें नहीं लिखा है, इसने झूठ बोला है। या तो ये तौबा करे या फिर ये फोन का। कितने बेगैरत होते हैं देवबंदी। ये कोठे वाली असगरी बेगम अपने बेगैरती का मुजाहिरा कर रही है, कह रहे कि भागे। अरे सवालों के जद में तू फंसा हुआ है, डंडी तू मार के फंस रहा है, मर रहा है, तू भागेगा कि मैं भागूंगा? होना चाहिए जो दावा करेगा। लिखा कहाँ लिखा है कि जो दावा करेगा वो अकाबिर की किताब में होना चाहिए? हाँ। बात ये नहीं है कि लफ्ज़ बलफ्ज़ तूने क्या कहा, बात ये है कि तुमने ये कहा है कि तुम्हारा कोई भी दावा, कोई भी तुम्हारा एतराज़ तुम्हारे अकाबिर के मसलक के उसूल के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए, मुताबिक होना चाहिए। तो इसी पर मैंने तुमसे पूछा कि ये उसूल कहाँ है, तो बजाय तुम इस उसूल को दिखाने के तुम कुछ और पेश कर रहे हो जहाँ पे ये चीज़ दूर दूर तक नज़र नहीं आती है, और तुमने झूठी कसम भी उठा ली। तो तुम कितने गिरे हुए हो, लोग खुद इंसाफ करें। असगरी चल मुबाइला करते हैं। अगर इसमें ये लिखा है कि जो दावा करेगा वो इबारत में होना चाहिए अकाबिरीन के, नेटवर्क की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, कैसे शोर मचा रहा है। और मेरा एक ही छोटा सा सवाल है कि रशीद अहमद गंगोई ने तक़वियतुल ईमान को घर में रखने को आईन इस्लाम बताया है, दलील क्या है? बजाय जवाब देने के कैसे तड़प रहा है? आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन आमीन बोल, चलो काट दो, आमीन बोल, बोल आमीन, बोला आमीन, हो गया काम। नहीं बोल आमीन, नहीं बोलेगा तो काट देंगे। आमीन नहीं बोलेगा काट देंगे। अब मैं बोलूं? आमीन बोल, आमीन बोला, आमीन बोल, बोल आमीन। चलो अल्लाहु अकबर, चलो इसमें लिखा है अल्लाहु अकबर। सामीन अब मैं इसको लगाऊंगा कि देखिए इसने झूठी बात में कैसे आमीन कहा है और कितना ज्यादा गिर सकता है, ये देवबंदी कितना ज्यादा गिर सकता है अपनी झूठी अना के लिए। मैं हवाला लगाऊंगा। हाँ बोल, हाँ बोल। 2 मिनट बोलूं मैं? 2 मिनट बोलूं? 2 मिनट नहीं दिखा वहाँ पे, कहाँ पे लिखा है? मुझे नहीं दिख रहा है। 2 मिनट बोलूं मैं, जवाब दूं? जब तक मुझे 2 मिनट का मौका नहीं दोगे मैं नहीं बोलूंगा। मैं जवाब दूं? भाग गया जरा, भाग गया, देख रहा हूँ, भाग गया। देखें कितने बड़े मरदूद, देखो, जबकि ये जुमला मैंने बोला ही नहीं कि जो दावा करेगा वो काबिर की किताब में होनी चाहिए, ये जुमला मैंने बोला ही नहीं। मैं अभी लाइन पे है हजरत, तो बताएं मैं कब बोला है? तमाम अहबाब इस गुफ्तगू को सुनेंगे, ये जुमला मैंने बोला ही नहीं, ये जुमला इस्तेमाल करके मुनव्वर नक्शबंदी और सादिक चुरकुट दोनों लानत का तौर पड़ेगा अपने गले में। रिपीट कर अपने जुमले को, रिपीट कर। मैंने ये अल्फाज बोला ही नहीं, जो दावा करेगा रिपीट कर, क्या मुझे बोलने देगा? मुझे बोलने देगा? भोग क्या बोले? भोग 2 मिनट बोलने, 2 मिनट बोलने दे, 2 मिनट। अरे अरे मौत ने मेरा पेशाब के कतरे के बात करता गया इसको बराबर नहीं है। कसम खुदा की तरह मुंह पर मेरा पेशाब तो नापाक हो जाएगा। कोई आवाज नहीं काटी है, हो गए नेटवर्क की वजह से। ये बात पर कहता है कि अली असगर मौत है, ये जो चिरकुट जो है, ये जो क्या हो गई
काम है कि रशीद अहमद गंगोही को अब ये बचा नहीं सकता, अब ये शराइत में भागता रहेगा। मैं कहता हूँ अगर दुनिया वहाबियत में देवबंद में कोई हलाल हुआ है तो रशीद अहमद गंगोही ने जो इस्लाम बताया है, इस्लाम जो बताया है कि तफसील ईमान का घर में रखना इस्लाम है, अगर दलील देगा, अगर कोई वहाबी हरामी है हलाली है तो देगा, और अगर हरामी है 2 मिनट में अरे मनोहर भाई आप ये महिला हमारे शबाब जो बंदी है इसके बाद की बात सुननी है जो बरेलवी है ये जिना है ये जिना के पैदावार है, और इसके बाद ये शराइत में ना मनोहर भाई इसकी माँ जो है सुन्नी है बरेलवी है, और इसका बाप जो बंदी है रखेल बना के रखा हुआ है इसकी माँ को। हाँ सही बात है, मनोहर भाई रखेल बना के रखा हुआ है इसकी माँ को, इसके बाप रखेल बना के रखा है, रखेल बना के रखा है। हाँ चल बोल भाई 2 मिनट बोल, कितने 2 मिनट 1 मिनट हाँ 2 मिनट बोल, दरमियान 2 मिनट बोल रखेल की औलाद 2 मिनट बोल रखेल की औलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, ये मुनव्वर नक्शबंदी ने कहा कि अली असगर का जुमला ये है कि जो दावा करेगा अकाबिर की किताब में होनी चाहिए। मैंने ये जुमला बोला ही नहीं है, सामने सुन लेना। और ये कहा कि जो अगर ये बात अगर है उसूल है ये किताब में तो लानत तुम्हारे तो खुद मलऊन हुआ, अपने गले पे लाना तो पहन लिया। मेरा कहना है कि इस किताब का नाम है मुखालिफीन, उसमें वो पेश कर रहा है कि जो मुनाजरा कर रहा है अगर छोटा मोटा हो, अगर ऐसा दावा पेश करे कि जिसका जवाब उसके बड़ों ने दे दिया है तो उसका जवाब देना छोटों के लिए वक्त का ज़ाया करना है। मुनव्वर नक्शबंदी छोटा है, कब्र है, कीड़ा है, ये इसके बड़ों से मुनाजरा हुआ है इस पर। अब ये दावा पेश करेगा, इतराज़ करेगा तो ये मरदूद कज़्ज़ाब दज्जाल होगा, मक्कार होगा और अपने उसूल का खून करने वाला होगा, बेशरम बेहया होगा। इसी किताब और ये बोल रहा है कि मैंने जुमला बोला ही नहीं है, मैंने कहा कोई छोटा मोटा मुनाजिर अगर वो दावा और उसूल पेश करे, वो इतराज करे, जो बड़ों ने जवाब दे दिया है कि वक्त ज़ाया करना है तो ये उससे मुनाजरा नहीं करना चाहिए, ये असल बात है। ठीक है, अब मैं हवाला कर रहा हूँ। मुनव्वर नक्शबंदी ने अपने उसूल का खून किया है। मेरे पास हदिये रेलवे पर एक नजर किताब सफ़ा नंबर 153 में लिखा हुआ है, ऐसा मक्कार है, दज्जाल, धोखाबाज है कि मुसलमान उसूलों का खून करते हुए भी उसे जर्रा पर हया नहीं आती, किसको? जो अपने तो मुनव्वर नक्शबंदी ने उसूल का खून किया है तो मक्कार हुआ, दज्जाल हुआ, कज़्ज़ाब हुआ, बेशरम बेहया हुआ। ठीक है सामीन, तो अब ये जुमला साबित कर दे। मैंने कहा हो कि जो अकाबिर ये जो दावा पेश करेगा अकाबिर किताब होनी चाहिए। मैं अगर से वो है या नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं जुमला बोला ही नहीं है। ये जुमला खुद अपनी तरफ से खड़ करके लानत का तौक पहन लिया अपने गले पर, साजिश टुकड़ी उसके अंदर आ गया। ठीक है, अब बोल। भाग गया। जी मनोहर भाई आप बोल रहे, थोड़ा आवाज में आ जाइए, आवाज आपकी तरफ नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा है आपकी तरफ में। आवाज आ रही है, झूठ बोल रहा है, उसकी हालत खराब होगी। तेरी तरफ आ रही है क्या आवाज? अरे तेरी तरफ आ रही है क्या आवाज? ओ पैदाइशी कीड़े, तेरी तरफ आ रही है क्या? सामीन हजरात देखिए, ये इसकी माँ सुन्नी हंसी बरेलवी, इसका बाप जो अरे सादी भाई मुझे खेल बना के रखा हुआ है। अरे सादी भाई यार, अरे सादी भाई बोलने दो यार। अरे सादी भाई आवाज आ रही है आपकी? सादी भाई अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है? कभी जिंदगी को बात नहीं कर सकते मनोहर अभी भाई। आवाज आ रही है? अभी मेरी आवाज आप देखिए, आप बोलने नहीं देगा ये, अब ये बोलने नहीं देगा, अब ये भागेगा, अब ये भागना चाहता है। अरे बोलने दोगे या भागोगे? भागोगे तो भाग जाओ, जिंदगी में बात नहीं कर सकते। भागना तो मुकद्दर है तुम्हारा। सामईन मोहतरम, मैंने 2 मिनट इनकी बातें सुनी है, मगर कहते हैं ना कि जो हराम का पैदावार हो, जो जिना का पैदावार हो, तो उनकी ये फितरत है, वो बकवास करेगा। अब मेरी बारी आई है तो ये मेरी बात सुनेगा नहीं। बोल तू, मेरी बारी नहीं क्यों बोला? सामईन मोहतरम, सबसे पहली बात कि असगरी बेगम ये इतना बड़ा बदनाम जमाना और इतना बड़ा झूठा मक्कार फरेबी है कि देखिए सामईन मोहतरम, अब ये कैसे शोर मचा रहा है, अब ये भागना चाहता है। भाग जा। सामईन मोहतरम, मेरा सवाल ये था कि रशीद अहमद, देखिए सामईन क्या अल्लाह की पनाह, जा। मैं कहता हूँ सुन,
सादिक भाई ये बात नहीं करेगा यार, ये बात करने थोड़ी आया है, ये वक्त ज़ाया करने आया है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया वहाबियत में कोई हलाली ही नहीं है, हलाली को गैरत आती है, हलाली को गैरत आती है, और जो हरामी होगा तो उसको गैरत कहाँ से आएगी। सही बात है। हम देखिए, ये देखिए ये हरामी असगरी बेगम ये कोठी में बैठकर तब मुजरा करने वाली, ये कैसे बकवास कर रही है। हजरत सुन रहे हैं सामीन मोहतरम, बस शिद्दत हो गई। अगर ये हलाली होगा तो मेरी बात सुनेगा, हलाली होगा तो मेरी बात सुनेगा। अब सामीन मोहतरम मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सामीन मोहतरम इसने अब ये सुनेगा नहीं। तुझे ये जिसको क्या यार सादिक भाई बताएं, इनकी असल में खता है, इनकी असल में खता है, इनकी नस्ल में खता, कार देते हैं, ये बात नहीं करें दुनिया में। फोन काटिएगा भागने दो, भागने दो। सादिक भाई सुनिए, सादिक भाई इसने जो उसूल पेश किया, जो हुसामुल हरमैन से पेश किया है ना, उसमें ये बात है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जवाब दे दिया है उसका जवाब देना जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसने कहा है कि तुम जो पेश करोगे तो छोटा मोटा देवबंदी, ये क्या, ये तो मैं इनसे मैंने जो पहले शर्त रखी थी वो शर्त क्या थी कि तुम जो भी दावा, जो भी शरायत, जो भी उसूल पेश करोगे तुम्हारे मसलक के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ये कहता है कि हमारे मसलक तुम्हारे लिए मोतबर है, हमारे अकाबिर तुम्हारे लिए मोतबर है। अरे तुम्हारे लिए मोतबर है कि नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब वहाँ से भागा फरार हुआ। अभी ये हुसामुल हरमैन जो पेश किया, इसे ये क्या साबित करना चाहता है। इनका दावा था कि जो हम दावा करेंगे, जो हम दलील देंगे, वो हमारे किताबों से साबित करना पड़ेगा हमको, ठीक है। इन्होंने ये शर्त रखने की कोशिश की है, लेकिन अब ये जो हवाला भेजा है इससे तो इसका कोई तालमेल ही नहीं है। क्या छोटा मोटा अगर कोई डिलीट मार देगा हवाला, मुझे सेंड कर, पहले डिलीट मार देगा वो कभी। हाँ रुकिए, हवाला सेंड कर दे रहा हूँ मैं आपको। कहीं भाग तो नहीं गया, ये आवाज नहीं आ रही इनकी। तो भाग गया। और क्या कह रहा है, छोटे मोटे देवबंदियों को जवाब देना जरूरी नहीं। आप खुद अपने, हम लोग कह रहे हैं छोटा मोटा, आप खुद अपने आप को कह रहा है छोटा मोटा। अरे सादिक भाई चलिए ठीक है, मैं कॉपी किया हूँ। सादिक भाई देखिए, तकरीबन आधा घंटा हो गया है शरायत तय करते करते। मैं कहता हूँ अगर दुनिया वहाबियत देवबंदी में कोई हलाली है तो रशीद अहमद गंगोही ने जो दावा किया है, फतावा रशीदिया में कि तक़वियतुल ईमान का घर में रखना आईन इस्लाम है, अल्लाह की कसम ये सराहतन कुफ्र है। ये कुरान पर फजीलत देना है कि कुरान मजीद के बारे में ऐसा कोई दावा या ऐसा कोई जो है न नस्स कुरानी मिलता है, ना हदीस मुतवातिरा, ना कुरान और हदीस से ऐसा कोई जो है ऐसी कोई दलील साबित है। लेकिन रशीद अहमद गंगोही ने तक़वियतुल ईमान जिस किताब के बारे में खुद एतराफ़ किया है रशीद इस्माइल दहलवी ने कि मुझसे गलती हुई है, मैंने शिर्क खफ़ी को शिर्क जली लिखा है, उस किताब को रशीद अहमद गंगोही ने ऐन इस्लाम कहा है, वो भी घर में रखना। ऐसा कह के उसने कुरान पर फजीलत दे करके जो है कुफ्र अपने हिस्से में लिया है, अपने नामजद किया है। मैं कहता हूँ अगर असगरी बेगम में या आरिफुल हकानी में अगर ज़र्रा बराबर गैरत है और दम है तो दलील पेश करे कि किस दलील के एतबार से, किस कुरान मजीद की आयत की रोशनी में, किस हदीस के रोशनी में आईन इस्लाम कहा है, ये दलील दे। क्योंकि ये शरायत के आड़ में छुपना चाहता है, लेकिन मैं इसे छुपने नहीं दूंगा। अब ये बोल सकता है। हाँ बोलो। अब बोलो। हजरत ने आपके पर आपके मनोवर नक्शबंदी मैं नहीं करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अखलाक और किरदार के दायरे में गुफ्तगू करूँगा कि हमारे अकाबिर ने मुझे ही सिखाया है, ठीक है। जिनके अकाबिर के अंदर बदअखलाकी है, बदकिरदार है, शैतानियत हावी है, वो इस तरह जुमले से कहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बदअखलाकी नहीं किसने करेंगे। मेरे पास किताब तहक़ीक़ात, ठीक है, अशरफ सियालवी किताब है, सफ़ा नंबर 60 में लिखता है, ये कह रहा है ना कि तक़वियतुल ईमान का घर पे रखना इस्लाम, ये वो आईन इस्लाम कह रहा है। तो मैं किताब है, लेकिन जब वो कलिमात मुजद्दिद आज़म आला हजरत के इल्म में आने आए तो बमिस्दाक़ फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, उनमें आला हजरत क़ुद्दस सिर्रुहु को इस्लाम का पहलू समझ में आया। इसमें इस्माइल दहलवी की इबारत में इस्लाम का पहलू नजर आया। तो इस्लाम का पहलू जिसमें हो उसमें कुफ्र नहीं होता, शिर्क नहीं होता, बिदअत नहीं होता, खुराफात नहीं होते, गुनाह नहीं होते, मुनकर नहीं होते, ठीक है। तो इस्लाम का पहलू नजर आया। तक़वियतुल ईमान इस्लाम का पहलू है, जिसमें इस्लाम का पहलू हो। क्या मुनव्वर नक्शबंदी साहब बिल भी मुनाजिर आप बताएं, जिसमें इस्लाम का पहलू में कुफ्र होता है,
शिर्क होता है, बिदअत होती है, खुराफात होते हैं। तो आपके घर से मैं साबित कर दिया तक़वीतुल ईमान इस्लाम आइन इस्लाम है। चलिए दूसरी दलील मैं दे रहा हूँ, दूसरी दलील दे रहा हूँ मैं। ये मेरे पास है, टाइम देखिएगा सादिक भाई 2 मिनट। खामोश रहो। हाँ देख रहा हूँ। बिल्कुल मेरे पास अस्सवाल हिंदी है, ठीक है, उसमें लिखा है सफ़ा नंबर 34 पर कि मुसलमानों पर क़िसामुल हरमैन शरीफ के अहकाम मानना और उनके मुताबिक अमल फर्ज है। मतलब दो आईन इस्लाम उसको मानना फर्ज होता है। तक़वीतुल ईमान तुम्हारी किताब से आईन इस्लाम में तो फर्ज है, ठीक है। अब तुम्हारे घर से बात साबित हो गई क़िसामुल हरमैन भी फर्ज है। तो अगर किसी किताब को फर्ज कह देना, कतईयात कह देना अगर कुरान हो गया, तो फिर तुम्हारे घर की किताब हरमैन तुम्हारा कुरान है, हैं? वो अल्लाह की तरफ से वही है वो, ठीक है। अब तुमको मैंने साबित कर दिया, अब तुम अपने एतराज की इज्जत में आकर के तुम मुशरिक साबित हुए, तुम काफिर साबित हुए। क्यों? कि तक़वीतुल ईमान में तुम्हारे घर से मैंने साबित किया तक़वीतुल ईमान की इबारत में इस्लाम का पहलू है। टाइम हो गया। जवाब नहीं दिया। हाँ नहीं मैं बात कर रहा हूँ। सामईन मोहतरम, मैंने इनसे पूछा था कि रशीद अहमद गंगोही साहब ने जो कुरान मजीद को तक़वीतुल ईमान को कुरान मजीद पर फजीलत दे करके जो गुमराही जो कुफ्र अपने नामज़द किया है, तो बजाय इसके कि ये कोई दलील पेश करता कि वो कौन सी कुरान की आयत है या उसकी रोशनी में इस्तदलाल किया है, ये सब बताने के बजाय ये कह रहा है कि तुम्हारे किताब में तक़वीतुल ईमान को ऐन इस्लाम बताया गया है। मैं कहता हूँ कि अगर ये दिखा पाया तो ये मैं इसे जो है हरामी कहना ज़िंदगी भर के लिए छोड़ दूंगा। अगर ये नहीं दिखा पाया इबारत के तक़वीतुल ईमान को ऐन इस्लाम जो है बरेलियों की किताब में नहीं लिखा है, तो फिर इसको मैं हलाली कभी नहीं मानूंगा। तो अब ये दिखाएगा हमको कि वो कौन सी इबारत है जहाँ पे तक़वीतुल ईमान को जो है ये ऐन इस्लाम कहा गया है, जबकि ऐन इस्लाम इसके रशीद अहमद गंगोही ने कहा है। इसने कहा हमारे बुजुर्गान दीन को, जबकि इसके हिकायत औलिया में अशरफ अली थानवी साहब की किताब में लिखा हुआ है कि रशीद अहमद गंगोही ने भरे मजमे में लिटा करके इसमें क्या कहते हैं कासिम नानोतवी को उनके साथ बदतमीज़ी की, भरे मजमे में मुरीदों के सामने उनके साथ जो है अपने बुरे ख्यालों का इजहार किया, बदतमीज़ी की, तो उनका असर इन पर है, तो ये हमारे बुज़ुर्गों पर बहतान लगाते हैं। तो सामईन मोहतरम, मैंने इनसे जो तकाजा किया है कि फतावा रशीदिया में जो लिखा है कि तक़वीतुल ईमान का घर में रखना आईन इस्लाम है, तो घर में रखना आईन इस्लाम किस बिना पर है? और इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो फरमाया है कि इस्लाम के पहलू समझ में आया, इसी मौजू पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आरिफुल हक़ानी को ऐसा धूल चटाया है कि वो ज़िंदगी भर नहीं संभल सकता। तो वो एक अलग मौजूद बहस है। मैं जो कह रहा हूँ कि रशीद अहमद गंगोही की बात कर रहा हूँ कि रशीद अहमद गंगोही ने जो इस्माइल दहलवी की किताब को कुरान पर फजीलत दी है, तो रशीद अहमद गंगोही ये काफिर हुआ या नहीं हुआ? गुमराह अपने जो है नामजद किया कि नहीं किया? मैं कहता हूँ कि तक़वीतुल हाँ, तो ये दलील पेश करे, वो दलील दे, सीधी सी बात है, दलील दे मुझे कैसे आईन इस्लाम में घर में रखना।